তিনি জনপ্রিয় মোটিভেশনাল স্পিকার, প্রেরণা গুরু, লাইফস্টাইল প্রশিক্ষক, লেখক এবং তিনি সন্ন্যাসী। কর্মজীবন থেকে বেরিয়ে এসে ডুব দিয়েছেন ভারতীয় দর্শন এবং কন্টেম্পোরারি সাইকোলজি চর্চায়। তার লেখা বই লাইফস অ্যামেজিং সিক্রেট, এনার্জাইজ ইয়োর মাইন্ড লক্ষ লক্ষ পাঠক মনকে মুগ্ধ এবং সমৃদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রেখেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও। তিনি মোটিভেটর গৌর গোপাল দাস। Everything that we have was given to us by others. There's only one thing we can do, our karmas. Social media just putting us in the mode of comparison. Non-stop comparison. মোটিভেশনাল স্পিকার, প্রেরণা গুরু, লাইফস্টাইল প্রশিক্ষক, লেখক, সুশীল সমাজের মুখ নাকি সমাজ মাধ্যম পার্সোনালিটি, ইন্টারনেট সেলিব্রিটি, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নাকি সেলিব্রিটি মঙ্ক? How many of you believe that money actually cannot buy happiness? It can buy you things, but it can't buy happiness. You all believe? Great. Now, how many of you believe but still want more money? Look at that now. All of you guys raised and said, "Ye haath se uthaya, money can't buy happiness, but I want more." একদা প্রকৌশলী এই মানুষটি ইসকনের সন্ন্যাসী, কিন্তু এটুকুই তিনি নন। ওই প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় গেঁথে গেঁথেই তৈরি তার বৃহত্তর আত্মপরিচয়। কর্মজীবন থেকে বেরিয়ে এসে ডুব দিয়েছিলেন ভারতীয় দর্শন ও কন্টেম্পোরারি সাইকোলজি চর্চায়। Don't worry so much about your name and fame. Worry about what you're doing in life and the choices that you're making in life. 2 দশকেরও বেশি সময় জুড়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন কর্পোরেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রেখেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও। কাজ করেছেন শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন নিয়ে। হ্যাঁ, বইও লিখেছেন একাধিক। তার লাইফস অ্যামেজিং সিক্রেটস, এনার্জাইজ ইয়োর মাইন্ড ইত্যাদি বইয়ে লক্ষ লক্ষ পাঠকমনকে মুগ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনের বাস্তবাদিতা পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নেওয়া বারবার শিরোনামে আসা আদতে পুনের এই মানুষটির একটি নাম পরিচয় আছে বই কি? তিনি গৌর গোপাল দাস। দর্শন ও শিক্ষা জগতে অসামান্য অবদানের জন্য আপনি জি24 ঘন্টা অনন্য সম্মানে সম্মানিত। আপনাকে সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। Would request Mr. Gaur Gopal Das to come on stage, please. আমি সেই সঙ্গে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি মিস্টার করণ অভিষেক সিং, সিইও জি মিডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড, এবং মিস্টার সন্দীপন মজুমদার, RSM সানরাইজ স্পাইসেস আইটিসি লিমিটেড। তার সাথে সাথে একজন ভীষণ স্পেশাল মানুষকে মঞ্চে ডেকে নেব, বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান পিসি সরকার জুনিয়র। জি24 ঘন্টার পক্ষ থেকে সিইও মিস্টার করণ অভিষেক সিংকে আমি অনুরোধ করব উত্তরীয় তুলে দেওয়ার জন্য। মিস্টার সন্দীপন মজুমদার এবং রাজেশ স্যার, আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা যদি সার্টিফিকেটটি ওনার হাতে তুলে দেন। জি24 ঘন্টা অনন্য সম্মান 1431-এর সুদৃশ্য ট্রফিটি ওনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান পিসি সরকার জুনিয়রকে। আপনাদের সকলের জন্য একটি খুব শুভ সন্ধ্যা। Is that right, Bengali? একদম। My best wishes and greetings to all the guests and dignitaries who are present here and are watching on television as well. And my sincere gratitude to Zee24 Ghanta for conferring this honor upon me. I really do not think that my work or what I do comes anywhere close to what so many individuals are doing in this nation and around the world. And after having seen these gentlemen and these ladies who received that award this evening, it was called Ananno Shadharan, right? They came from apparently Sadharan backgrounds. I think the award should be called Ananna Ashadharan, because
because the kind of work they do is ashadharan. And that's why we say the difference between ordinary and extraordinary is the word extra, right? And what a privilege for me to be awarded by the magical hands of the magician of the country, P.C. Sarkar Jr., sir. And I dedicate this award to God, who is the source of all opportunities, to my parents and family, whose love nourishes me at all times, to my gurus, teachers, mentors, whose wisdom is the very basis of what I do, to my friends and well-wishers, whose support and wishes sustain me, to my team members, whose committed hard work brings my work to the world, and I humbly accept this honor on behalf of everybody out there who makes me me. জি 24 ঘন্টা কে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনার সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। জি 24 ঘন্টার সকল দর্শককে স্বাগত। আজ আমাদের সঙ্গে এমন একজন মানুষ রয়েছেন, সাধারণভাবে আমরা বলি বিভিন্ন মানুষের যখন বক্তব্য নিই বা ইন্টারভিউ করি তার পরিচয় দিই, কিন্তু এমন একজন মানুষ রয়েছেন তার কি পরিচয় দেব সেটা তিনি সব থেকে ভালো আমাদের বলতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন श्री गौर गोपाल दास जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो आपको स्वागत है जी 24 घंटा में। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हम लोग जब किसी का इंटरव्यू करते हैं तो बोलते हैं ये हिस्टोरियन है, ये पॉलिटिशियन है, ये साधक है, ये, लेकिन अगर गूगल में सर्च किया जाए आपके नाम के पीछे इतना सारा एडजेक्टिव लगा हुआ है तो मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन आप बताइए, आप कौन से नाम से मतलब जाना चाहते हैं? मैं एक सेवक के नाम से जाना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है सेवा करना, जनसामान्य की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, विश्व की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना। मोहम्मद अली जो बड़े बॉक्सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि द रेंट वी पे फॉर आवर स्टे ऑन दिस अर्थ इज सर्विस टू अदर्स। हम सब कुछ रेंट भरते हैं अब मकान के लिए, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसका भाड़ा, उसका रेंट हम क्या देंगे? सेवा। तो इसीलिए यदि मैं किसी नाम से जाना चाहता हूँ तो वो एक सेवक, और मेरे नाम में मेरे गुरुजी ने वो दिया है गौर गोपाल दास। तो दैट्स माय मेन आइडेंटिटी, ट्राइंग टू सर्व अदर्स। आज के ज़माने में हम लोग देखेंगे तो युवा पीढ़ी जो है उनको बोला जाता है कि कहीं पे आप जाओ, संत के साथ जाओ, सत्संग में जाओ, तो जाते हैं लेकिन मन में थोड़ा दुविधा भी होती है। लेकिन आपका जब प्रोग्राम होता है उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो जाते हैं ये युवा पीढ़ी से लोग जाते हैं। वो कौन सा चीज़ है जो आप उनको बताते हैं, जो एक साधु महाराज के पास वो जाते हैं उनका बात सुनने के लिए? मुझे लगता है कि अगर हमको हमारा संदेश जो है युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो उनके लिए 4 ईज़ बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी में। फर्स्ट ई है एंटरटेनिंग। जो भी हम बोल रहे हैं वो एंटरटेनिंग होना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी के लिए इतने ऑप्शंस है, मोबाइल पे देखने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने के लिए, वो क्यों स्पिरिचुअल बात सुनने आएंगे अगर वो एंटरटेनिंग नहीं हो? तो सबसे पहले एंटरटेनिंग। सेकेंड है एंगेजिंग। वो एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। एंटरटेनिंग तो है क्या, लेकिन एंगेजिंग है। आजकल का एंगेजमेंट टाइम कितना है लोगों का? गोल्डफिश के अटेंशन स्पैन से कम अटेंशन स्पैन है मोबाइल पे रहने की वजह से। तो जब तक हमारे कॉन्वर्सेशंस, हमारी बातें एंगेजिंग नहीं होंगी तब तक वो कैसे सुनेंगे? तो एंटरटेनिंग, एंगेजिंग। तीसरा है एनलाइवनिंग। एनलाइवनिंग का मतलब है कि एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा देने वाली बात। क्योंकि लोग पहले ही अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं, इतने मायूस है, इतने डिप्रेस्ड है, इतने लोनली है, इतने एंग्शियस है, इतने वरीड है कि उनको एक ऊर्जा की ज़रूरत है। तो इसलिए एनलाइवनिंग होनी चाहिए हमारी बात, और उसके बाद आता है एनलाइटनिंग, जहाँ कोई स्पिरिचुअल बात, डीप फिलॉसफी वाली बात हम बोलने लगे। तो मैं ये 4 चीज़ हमेशा अपने कॉन्वर्सेशंस में रखता हूँ: एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, एनलाइवनिंग और एनलाइटनिंग।
महाराज, अगर हम देखते हैं कि आपका जो कन्वर्सेशन होता है या जहाँ पे आप बोलते हैं, तो आप वो साधु है जो बात समझाने के लिए कभी कभी सिनेमा से या हिंदी फिल्मों के जो गाने होते हैं उस गानों के जो लाइन है वो आप लाते हैं। लेकिन ये पहला साधु आप है जो मतलब जो गाना वो लोग सुनते हैं उस गानों का आप दूसरा मीनिंग करके उन लोगों को समझाते हैं। जी, मतलब इसके लिए आपको भी तो गाना सुनना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो मुझे लगता है कि आज अगर हम गीता के श्लोक बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे, तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है यूथ तक पहुंचने के लिए रेलेवेंस। हम लोग रेलेवेंट होने चाहिए उनके लिए, और दूसरी चीज़ है हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा उनके लिए, और जो भी बोल रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए कुछ उनके पास होना चाहिए। सो बहुत ज़रूरी है कि हम रेलेवेंट हो, कंटेम्प्रेरी हो, हम प्रैक्टिकल हो और हमारी बातें एप्लीकेबल हो। अच्छा, मैं संस्कृत में बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बोलने लगूं तो आज के जो युवक और युवती हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो कभी सुन ही नहीं पाएंगे। तो गीता के ही सार वाला, शास्त्र के ही सार वाला अगर एक गाना आ जाए तो यूं तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो मैं जब बोलता हूं तो मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं बोलता हूं, मैं उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जानना चाहता हूं। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस गीता है या कोई शास्त्र है या वेद है, लेकिन उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉलीवुड के गाने हैं, अलग अलग प्रकार के गाने में सुनते हैं। अच्छा, मेरे सुनने की बात तो मैंने तो पुराने गाने, तो मैं भी तो कॉलेज में था, हाँ। तो उस समय के सारे गाने तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन आज के जो मॉडर्न गाने हैं, ये सारे गाने कई बार मुझे मेरी टीम बताते हैं, कई बार मेरे जो खास दोस्त हैं वो तो बाहर सुनते ही ये गाने, तो उनको कोई गाना अच्छा लगा तो वो मुझे बताते थे, तो मैं एक बार सुन लूँ, उनकी अगर लाइंस अच्छी है तो वो बैठ जाता है, फिर वो कनेक्ट करके बोल देता हूँ। खुद गाना लिखने के बारे में सोचे? हाँ, बिल्कुल। पहले मैं कविता भी लिखता था, और मैंने एक स्पोकन वर्ड की कविता भी लिखी है हिंदी में जिसका नाम था सीख रहा हूँ, और उसका वीडियो यूट्यूब पे है, जो मॉरिशस में फिल्म हुआ था। और लिखने का तो शौक मुझे है ही, किताबें लिखी है तो, और शायद भविष्य में गाना भी जरूर लिखूंगा। कविताएं तो लिखी है, गाना भी लिखेंगे। महाराज, आखिरी 2 सवाल आपसे। जैसे कि अभी जो स्थिति है, जैसे कि हम देखते हैं कि सारे जो नौजवान हैं आपके बात सुनते हैं बहुत ज़्यादा, कभी आपके दिमाग में पॉलिटिक्स में जाने का कोई सोच आया? जी नहीं, कभी नहीं। इस वजह से नहीं आया, पॉलिटिक्स इज अ ग्रेट मीडियम टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। पॉलिटिक्स एक अच्छा माध्यम है गवर्नेंस के लिए, देश में बदलाव लाना है तो पॉलिटिक्स में आना बहुत अच्छी चीज है। अगर इंटेंशन सही हो, मकसद सही हो, वो हमारा पेशा नहीं हो बल्कि हम कंट्रीब्यूट करने के लिए आए, तब फिर पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा माध्यम है। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम काम कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए भी एक मेटल लगता है, एक योग्यता लगती है। हम सबको वो करना चाहिए जिसकी योग्यता हम में है। अगर मुझ में पॉलिटिक्स की योग्यता नहीं है और मैं उसमें आ जाऊं तो मैं एसेट बनने के बदले में लायबिलिटी बन जाऊंगा। और मैंने हमेशा एक चीज सीखी है कि हमको लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए इस देश के लिए, हमको एसेट बनना चाहिए। और एसेट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा जो मेरी योग्यता है। तो अगर मेरी योग्यता कुछ करने की है, मैं वो करता रहूंगा और उससे इस देश में, इस विश्व में, इस लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों की योग्यता पॉलिटिक्स है, उनको तो जरूर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को अच्छे नेताओं की, अच्छे राजनेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, नेशन बिल्डिंग में आगे आके लड़ के हमारे भारत को उज्जवल तो है ही, लेकिन और अधिक उज्जवल बना पाए। लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, गले में खरोच है मालूम है, लेकिन जीवन का वो कौन सा सच है जो आप सबको बताना चाहेंगे, लेकिन वो आपके मुंह से गानों के हिसाब से हम सुनना चाहेंगे? क्योंकि मैं बंगाल में हूँ तो बंगाली गाना गाऊंगा। शायद पता नहीं रविंद्र संगीत है क्या, मेरे ख्याल से रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही होगा। हाँ। जदी तो टैगोर जी का ही है। टैगोर जी का ही है। हाँ जी। तो मैंने हमेशा सोचा है इस बात को कि कई बार हमारे रास्ते में रोड़े आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई बार लोग पीछे खींचते हैं,
कई बार लोग हमारा साथ नहीं देते, हमारा समर्थन नहीं करते, लेकिन अंदर ना अगर हमारे पैशन की, हमारे कॉलिंग की, हमारे पर्पस की आग अगर जल रही है ना, तो इंसान चलता रहता है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না কে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না কে তবে একলা चलो रे। तो कभी कभी अकेला चलना पड़ता है, लेकिन आज जो हमने देखा, जो अनन्य साधारण, जिसको मैंने कहा वो अनन्य साधारण नहीं, वो अनन्य असाधारण अवार्ड है, वो सब अकेले सिंपल बैकग्राउंड से आए हुए लोग थे, अकेले थे, चलते गए, चलते गए, कई बार लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, चलते गए, आज यहाँ पर अवार्ड मिल रहा है। और कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है समाज के लिए, ये तो जब ये वीडियोस बाहर आएंगे तब लोग जरूर देखेंगे। महाराज आपको बहुत बहुत प्रणाम और सम्मान। आप स्वस्थ रहिए और सारे युवा पीढ़ी को ज्यादातर आप अपने बातों से प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं जी 24 घंटा का हार्दिक आभार, और ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए भी मेरे हार्दिक आभार। ये सम्मान जनता का है जिन्होंने मुझे बनाया है जो मैं हूँ, और उन्हीं को समर्पित है। थैंक यू जी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।